asking about the release of a PhD scholar who is also a student from JNU is not something that is a criminal offense under which you would detain people. So this is outrageous, be it Congress or BJP, this is not acceptable. The new minister, Mr. Prahlad Joshi, is also a RSS strongman. So the problem of saffronization of education, privatization of education, it doesn't stop even though there is a new education minister. So how do you then conquer with this reality and celebrate at the same time or be happy about this development? इस तरह के बिगड़, इस तरह के जेंडर जस्टिस के खिलाफ के लोगों को हम बिल्कुल बेहतर नहीं देखते हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस बात को रजिस्टर कराता है इस देश में कि देश की लोकतंत्र को अनअकाउंटेबिलिटी से चलने इस देश के लोग नहीं देंगे. There also has been a new phenomena on Instagram. It's inspired by Cockroach Janata Party apparently, and it's called Reservation Hatao Movement, which is so weird because even in their bio they say educate, agitate, organize, which is a direct quote from Baba Saheb Ambedkar. So they haven't even quoted Savarkar. So how do you respond to a movement like this at this particular juncture? ये क्यों नहीं पूछते कि लगातार 10 सालों में एम्प्लॉयमेंट का रेट क्यों कमा है? ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि यूनिवर्सिटीज में सीट क्यों नहीं बढ़ती या नई यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं खुलते? Hi Anjali. So there have also been reports coming from various parts of the country, specifically from Goa and Karnataka, that people carrying placards of Free Umar Khalid have also been detained by the police. Now Goa has a BJP government, so it's pretty expected. Karnataka, however, has a Congress-led government. So how do you respond to all those detentions? Like, what are your thoughts on that? मेरा थॉट तो यही है कि this is direct attack on democracy and dissent, and somebody who has been wrongfully incarcerated for the last 6 years, holding a placard saying release him, holding a placard in a students' movement, asking about the release of a PhD scholar who is also a student from JNU, is not something that is a criminal offense under which you would detain people. So this is outrageous, be it Congress or BJP, this is not acceptable. And I don't think CJP has taken this particular issue up because I remember Saurabh Das saying that this is a distraction at the moment and that we don't want to talk about Umar Khalid because it's a deviation from education. So what happens to the intersectionality then? डेफिनेटली, और मतलब हम तो इसको ऐसे नहीं देखते. उमर जो लगातार देश की तमाम आंदोलनों में अग्रिम कतार में खड़े होने वाले व्यक्ति रहे हैं. देश में यूजीसी, ऑक्यूपाई यूजीसी का आंदोलन, फंड कट का आंदोलन, जेएनयू को बचाने का आंदोलन, देश को बचाने के तमाम आंदोलन में जो व्यक्ति सबसे आगे खड़ा रहे, और आज जब उसको फंसाकर एक सरकार डेमोक्रेसी से डरकर बात करने की हिम्मत से डरकर जिसको जेल में डाल देती है, छात्र आंदोलन अगर उसकी बात नहीं करेगा तो किसकी बात तो कौन करेगा? Definitely. I also want to ask that both DU and JNU issued advisories prohibiting students from participating at protests or there will be punitive action. Now the law is clear that it's unconstitutional because you can't surveil and police adults like that. So how do you respond to that? And I want to ask this specifically because you are a student, because we've seen at least in JNU that the entire student union was suspended by the vice chancellor. So do you fear any punitive action that's coming across your way? मतलब डेफिनेटली हो सकता है. इन यूनिवर्सिटीज़ ने जेएनयू में तो क्योंकि एक रेजिस्टेंस के मॉडल को जेएनयू के चाहे वो यूनियन हो या स्टूडेंट्स हो उनके स्पिरिट ने जिंदा रखा है. डीयू तो लिटरली वो लैबोरेटरी है जो भाजपा आरएसएस देश की हर दूसरी यूनिवर्सिटी को बना देना चाहती है. पीएचडी में किसका दाखिला होगा, प्रोफेसर कौन बनेगा, सिलेबस क्या पढ़ाया जाएगा और किस तरह से हर 6 महीने पर फी हाइक कर एक ऐसे मॉडल के तहत ड्यू को ऑपरेट किया जाता है कि दे आर लिटरली टारगेटिंग कि कौन पढ़ पाएगा, और वही पढ़ पाएगा जिसके जेब में पैसा है, वही पढ़ पाएगा जिसके पास प्रिविलेज है. अगर आप मार्जिनलाइज आइडेंटिटी से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, तो ड्यू आपके लिए नहीं है. इस मॉडल के तहत आज ड्यू ऑपरेट हो रहा है. इसलिए भी डाइसेंट से सबसे ज़्यादा कोई डरता है तो ड्यू डरता है. और उसी वाइस चांसलर के द्वारा इश्यू की गई एडवाइजरी को हम लोग, जब ये इशू होता है उसके अगले दिन आर्ट्स फैकल्टी पर ड्यू के नॉर्थ कैंपस पे खड़े होकर पब्लिक मार्च कर पब्लिक मीटिंग कर जलाते हैं. और लगातार देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जिसको प्रीमियम यूनिवर्सिटी कहा जाता है, उससे सैकड़ों हजारों लाखों स्टूडेंट्स 20 तारीख की मार्च में भी शामिल थे. उसके बाद लाठी गोली खाने के बाद वापस से जंतर मंतर पे आए हैं. साहिल लोचब जिनको पैलेट इंजरी हुई है वो भी डीयू के स्टूडेंट है. और इस वाइस चांसलर, इस पूरे मैकेनिज्म को शर्म आना चाहिए. जहां पर अपने ही स्टूडेंट्स के प्रति हुए वायलेंस को कंडेम करना चाहिए, उनको हिम्मत देनी चाहिए, कॉन्फिडेंस देना चाहिए. आप उनको कह रहे हैं कि don't you dare go there, otherwise there will be legal actions and consequences that you'll have to bear. So this is a direct attack again on the democratic rights that we as students have. Which is why my next question would be,
And this is I know you're not a CJP spokesperson, so this is not directly attributed to you. But a larger critique of the movement was this, right? That even if you replace one incompetent minister, because the new minister, Mr. Prahlad Joshi, is also a RSS strongman. So the problem of saffronization of education, privatization of education, it doesn't stop even though there is a new education minister. So how do you then conquer with this reality and celebrate at the same time, or be happy about this development? You have to be happy, I believe, because जब देश में एक इस तरह का फांसीवादी निजाम काबिज हो, जिसने देश में पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज को इम्पॉसिबल बना दिया हो, जिसके जब राजनाथ सिंह ये बात कहते हैं कि एनडीए में इस्तीफे नहीं होते, भाजपा के मंत्री इस्तीफे नहीं करते, तो जब उसका इस्तीफा आप ले लेंगे, बात इसकी नहीं है कि एक इनकॉम्पिटेंट या एक आरएसएस आइडियोलॉग इज रिप्लेस्ड बाय अनदर आरएसएस आइडियोलॉग. वी वेरी वेल नो कि ये वही प्रहलाद जोशी है जिसने बिल्किस बानो के जब कन्विक्ट्स बाहर निकले तो मालाओं के साथ स्वागत किया, उनको होल्ड हार्टेडली वेलकम किया, जिसने देश में अगर महिला मुसलमान है उसको इंसाफ मिल भी जाएगा तो उसकी धज्जियां उड़ा दी जाएंगी, इस एग्जाम्पल को सेट किया. इस तरह के बिगट, इस तरह के जेंडर जस्टिस के खिलाफ के लोगों को हम बिल्कुल बेहतर नहीं देखते हैं. लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस बात को रजिस्टर कराता है इस देश में कि देश की लोकतंत्र को अनअकाउंटेबिलिटी से चलने इस देश के लोग नहीं देंगे. दिस इज आई वुड से एक छोटी विक्ट्री है, पर आने वाली कई विक्ट्रीज को ये चैनलाइज करेंगी कि भाजपा के खिलाफ लड़ा जा सकता है, कि जन आंदोलन इस देश में पॉसिबिलिटी है. पॉसिबिलिटी क्या, ओनली मीन्स है. Right. I also want in the recent few days, there also has been a new phenomena on Instagram. It's inspired by Cockroach Janata Party apparently, and it's called Reservation Hatao movement, which is so weird because even in their bio they say educate, agitate, organize, which is a direct quote from Baba Saheb Ambedkar. So they haven't even quoted Savarkar. So how do you respond to a movement like this at this particular juncture? So ये तो कुछ नहीं है, मुझे लगता है ये भाजपा के 12 सालों के देश के लोगों में नफरत, डिविजन, कास्टिज्म, पेट्रियार्की, इस्लामोफोबिया, हर तरह की नफरत पैदा करने के जो कोशिश रहे हैं उसी का नतीजा है. मेन स्ट्रीम मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिसीज, जुडिशरी, इन सारी इंस्टीट्यूशंस पे कब्जे के तहत जिस तरह का प्रोजेक्ट भाजपा ने चलाया है उसी का रिफ्लेक्शन है. जहां पर वो लोग जो मेरिट चीखते हैं, उनको ये नहीं पता कि दशकों के एक्सप्लॉयटेशन से उभरती हुई एक जनरेशन शायद आज पहली जनरेशन है, ये पहली जनरेशन भी नहीं है कई मायनों में तो, जो यूनिवर्सिटीज पहुंच पाते हैं. जब देश में 1 लाख स्कूलों पर पिछले 10 सालों में ताले लगे हैं, तो ये वो लोग हैं जो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते कि दलित शोषित समाज से आ रहे लोग किस तरह से आज एजुकेशन की पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रहे हैं. और इसमें कैपेबिलिटी और कैलिबर की दिक्कत नहीं है, अपॉर्चुनिटी के मैकेनिज्म्स को खत्म किया गया है. जब आप नई शिक्षा नीति लाते हैं और उसमें सोशल जस्टिस का एक शब्द नहीं होता, रिजर्वेशन का एक शब्द नहीं होता, तो आप इसको लाते हैं बुलडोज करने के लिए मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स के एस्पिरेशंस को, कि गलती से DU, JNU जैसे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में किसी रिक्शा चालक या किसी किसान की औलाद ना पहुंच जाए, करोड़पतियों की औलादें पहुंचे और शिक्षा किसी तरह का एक राइट ना बचे. हर तरह से उसके कॉर्पोरेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन उसको एक कमोडिटी बना दिया जाए. आप जब ये मैकेनिज्म्स इन प्लेस लाते हैं तो इसी तरह के अब्सर्ड डिस्कोर्सेस पैदा होंगे, इसी तरह के अब्सर्ड ट्रेंड जगह लेंगे, क्योंकि आपने, और मैं पूरी तरह से इस जनरेशन को भी खाली ब्लेम नहीं करूंगी, क्योंकि जब सरकार नफरत फैलाती है तो सरकार ऑर्गेनिक फंडामेंटल क्वेश्चंस को गायब करती है. ये लोग जो आज जिनको लगता है कि रिजर्वेशन की वजह से नौकरी नहीं मिली, ये लोग जिनको लगता है रिजर्वेशन की वजह से कॉलेज सीट नहीं मिली, ये क्यों नहीं पूछते कि लगातार 10 सालों में एम्प्लॉयमेंट का रेट क्यों कमा है. ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि यूनिवर्सिटीज में सीट क्यों नहीं बढ़ती या नई यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं खुलते. मैं DU में पढ़ती हूँ, 950 करोड़ का हेफा से लोन ले लिया है. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को सरकार ने हटा दिया है, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी आ गया है. बेसिकली नाउ द पब्लिक एजुकेशन मॉडल विल रन ऑन अ लोन बेस्ड मॉडल, which means what? You will take money from the students. That is why every 6 months, every semester there is a rapid fee hike. तो पूरी तरह से एजुकेशन एक वेलफेयर के मॉडल के तहत आना चाहिए. इस आइडिया को खत्म करके एजुकेशन अब सर को बाजार में बिकेगा, ये आइडिया को डिस्प्लेस कर दिया गया है इससे, और इसलिए भी इस तरह के ट्रेंड्स आएंगे. हालांकि इसी के विपरीत इस देश ने इस साल की शुरुआत में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा जो इक्विटी गाइडलाइंस आए, सोशल जस्टिस की इतनी बड़ी लड़ाई को विटनेस किया. देश के गली से, कस्बों से, छोटे छोटे शहरों से लोग सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ते हुए आए, और मुझे लगता है ये उसके खिलाफ की कास्टिज्म
के रिएक्शन में भी आया है। जब लोग समता, समानता और बराबरी की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं। My last question would be to you, and I would return to the findings by various ISA members. If you can share a few numbers as to how many people were detained, arrested, and the specific profile of them. Like, we know that mostly they were Muslims and Dalits. So, of course, there was a wide witch hunt across the nation in different parts of the country. और दिल्ली में ही 19 लोगों को निज़ामुद्दीन, सीलमपुर, ओखला अलग अलग जगहों से डिटेन किया गया, जिसमें से मेजॉरिटी मुस्लिम स्टूडेंट्स थे, जामिया के स्टूडेंट्स थे। और लीगल और पॉलिटिकल इंटरवेंशन के बाद आइसा के उनको रिहा किया गया। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो दिल्ली के सीनियर पुलिस ऑफिसर का कहना है कि अराउंड 600 स्टूडेंट्स वर डिटेन्ड। इसके साथ साथ बिहार में 400 से ज़्यादा लोगों को जेलों में रखा गया है। बेउर जेल में आइसा की भी लीडरशिप है, चाहे वो सबा हो, दिव्यम हो, दीपांकर है, संदीप सौरभ है, धनंजय है, और करीब 80 लोगों को कल वहाँ पे शिफ्ट किया गया है, जिनमें से मेजरली जो हैं वो दलित समाज से आ रहे लोग हैं, मुस्लिम समाज से आ रहे लोग हैं। उनका विच हंट बिहार में किया गया। सिवान में बहुत भयानक तरीके से AK-47 तक का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स को इंजर्ड किया गया, जिसमें भी आपको मार्जिनलाइज आइडेंटिटी के ही लोग ज़्यादा मिलेंगे। बंगाल में 15 लोग जो पहले अरेस्ट हुए, उनमें से 10 मुस्लिम्स थे। शुभेंदु अधिकारी ने ये बयान दिया कि 70 और लोगों पर FIR करेंगे, एंड दिस इज हाईली एंटिसिपेटेड because of the bigotry that BJP RSS regime holds against Muslim, कि उसमें भी एक बड़े तरीके से मुस्लिम स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाएगा। असम में भी एक बड़े संयोजक प्लान के तहत स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया, 50-60 स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया, जिनमें से मेजरली मुस्लिम है। तो देश भर में एक विच हंट चलाकर, चाहे वो इसी आंदोलन में सबसे पहले जिस तरह से जुनैद पे हमला किया जाता है, उनके परिवार को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको एक तरह से अबडक्ट करके मसूरी छोड़ दिया जाता है, और लगातार जो पुलिस इंटिमिडेशन उन पर है, वहाँ से जो सिलसिला शुरू होता है, देश भर में ये चल रहा है। हम लोग का आंदोलन तब तक रेस्ट नहीं करेगा जब तक देश में किसी भी व्यक्ति पर जो इस सवाल से इत्तेफाक रखते हुए लड़ रहा था उस पर FIR वापस नहीं होती, जब तक देश में हर कोने कोने से लोगों को रिहा नहीं किया जाता। जुनैद भाई की फैमिली अभी भी डिटेन्ड है, उस पर कोई अपडेट है? लास्ट अपडेट जो आपको पता है? डिटेन नहीं है, लास्ट अपडेट यही है कि वो इस चीज़ को लेकर, इस इंटिमिडेशन और पुलिस वायलेंस और उनके संवैधानिक अधिकार को एक तरह से तार-तार करते हुए जो पूरा पुलिस का रवैया रहा है, ही हैज मूव टू सुप्रीम कोर्ट, फाइल्ड अ PIR। और इसके साथ अभी तो वो ठीक है, पर पुलिस के इंटिमिडेशंस लगातार उनको हो रहे हैं। यही लास्ट अपडेट है। पुलिस उनको कॉल करके ये तक कहती है कि NSA लगा देंगे, पुलिस उनको कॉल करके ये तक कहती है कि इनकाउंटर कर देंगे। और ये वही पुलिस है जो, क्योंकि हिंदू रक्षा दल ने एक वीडियो निकाली थी कि हम संडे को आके, वो तो प्रोटेस्ट सैटरडे को खत्म हो गया, कि हम संडे को आकर वहाँ पे सबको मारेंगे, एंड इट्स एन ओपन थ्रेट, बट उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। हिंदू रक्षा दल ने तो इनफैक्ट गाजियाबाद में सोर्ड्स भी बांटी थी, एंड जो पिंकी चौधरी उनके लीडर है, उनको रिहा कर दिया था बेल पे, तो उनके खिलाफ एक्ट नहीं करेंगे, बट मोहम्मद जुनैद, क्योंकि वो मोहम्मद जुनैद हैं, बिल्कुल इसीलिए उन पे किया जाएगा एक्शन। लास्टली, अगर आप कोई बुक रेकमेंड करने चाहें टू समवन हु इजंट दैट politically aware but wants to become politically aware, get into progressive reading, so अगर आप एक बुक रेकमेंड करें। इस आंदोलन में ये बहुत कहा गया कि छात्रों का राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, ये एपॉलिटिकल है, पर everything that is inflicted upon us is political. Right. Policies, forms in which the government will operate, even the air we breathe, how we are able to walk, how we are able to sustain, everything that we do is political. Of course. तो भगत सिंह जब लाहौर कॉलेज में पढ़ते थे, लॉ कॉलेज में, तो उनके नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा दिया था कि छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। इसके खिलाफ उन्होंने एक लेख लिखा था, छात्र और राजनीति, स्टूडेंट एंड पॉलिटिक्स। बुक नहीं है, छोटा सा आर्टिकल है, 2-3 पेज का। मुझे लगता है इस दौर में जहाँ पर हम लोग जी रहे हैं, इस लेख को हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, जिसका क्रक्स यही है कि असली स्टूडेंट होने का मायना क्लास में डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म पढ़ लेना नहीं है, वो क्लर्कई करना है। इन सवालों को जमीन पर उतारना ही असली स्टूडेंट होने का मायना है। तो मुझे लगता है देश के तमाम स्टूडेंट्स को ये लेख जरूर पढ़ना चाहिए। All of you should definitely take that recommendation and read Bhagat Singh's work. I'll also link it in the comment section of this video. Thank you so much, Anjali. Thank you.